Okay. A very good morning, Govind. Good morning, Renu. Good morning, Shivani. I hope now the sound is okay. I hope the issue with the sound is now resolved. Okay. So today we'll be looking at the environmental impact assessment. That is one of the most important topics for your exam, both for prelims and mains. And like we have been doing, we'll be looking at all those things which are for both. A very good morning, Abhishek. Good morning, Bhavya. Yeah, Renu beta, I knew. Now it is going to be okay. The problem was that I forgot to switch on the mic, and it happens a lot of times. Okay, because there are certain rituals associated with all the things that you do in life, and amongst this ritual is to check the camera, to check the battery, to check the devices, and lot more things are involved. Okay, so sometimes it happens, so I forgot to switch on the very mic which I was holding with myself. Okay, so the fault was with the nearest thing that was to me. This was, you can think of it as an April Fool. Though it was not intentional. Bhavya beta, NGT has put penalty on Kerala government because they were not taking care of the natural environment. तो इससे आपको ये भी पता चलता है, इसी पे एक क्वेश्चन जो आ सकता है कि the National Green Tribunal can impose fine on the government or not. Okay, तो NGT can fine or impose penalty on even governments. ठीक है, तो जो भी न्यूज आता है, जैसे भव्य आपने पढ़ा कि केरला गवर्नमेंट पे है, तो उस समय आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, और मेंस का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट आर द डिवाइसेस इन द हैंड्स ऑफ सम ऑफ द ट्रिब्यूनल्स और जस्टिस सिस्टम विच कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू डू इट्स ड्यूटी प्रॉपरली. ठीक है, तो जब भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग जाना चाहिए जो आपका टारगेट है, एंड दैट इज क्लियरिंग द एग्जाम. ठीक है, एग्जाम को क्लियर करना आपका टारगेट है, तो इसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है. एंड दिस इज हाउ यू लर्न टू टेक केयर ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर. ठीक है, आज हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ने वाले हैं, एंड दिस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल also looks into कि what can be the impacts. ठीक है, so अब इस वर्ड को जब आप देखते हैं EIA, environmental impact assessment. Okay, so many a times it occurs to our mind that most of the times it is going to be penalized if something wrong can go with the environment. Okay, but like the basic concept of the sustainable development, due to the basic concept of the sustainable development, any step that the government or the international organizations are taking, they take into consideration not only the environment but also the social aspect and the economic aspect. Okay, so environmental impact assessment also looks into what can be the detrimental effect on the environment, which can finally lead to some social problems as well as economic problems. Okay, बेटा रामसर साइट्स वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाने की वजह से ये केरला के साथ किया गया है. ओके, एंड दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. अब ये इंपैक्ट की बात कर रहा है, मतलब कुछ होना चाहिए. देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग दैट somebody is doing or the organizations are doing or the government is doing or certain department is doing that can harm the environment. Okay, so environmental impact assessment is an assessment which looks into the developmental projects whether it can have a detrimental impact on the environment or not. Okay, पहले कैसा था कि सिर्फ डेवलपमेंट होती रहती थी, लोग डेवलपमेंट करते रहते थे, हम जैसे लोग भी खुश रहते थे कि भाई स्कूल बन गया, रोड बन गया, हॉस्पिटल बन गया. ओके, बट इन द लॉन्ग रन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वर अंडरटेकन अराउंड द वर्ल्ड, दे वर हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा था.
तो फाइनली जो फायदे आप देख सकते थे, because of the construction of a road or maybe an institution or maybe some recreational area for the people, in the long run they started having detrimental impact. Okay, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने जंगल क्लियर किया और वहां पे घर बना दिए, ठीक है, गरीब लोगों के लिए ही हमने घर बनाया, वी वांटेड टू हेल्प द पीपल ओनली, बट उस जंगल में जो रहते थे वो उनको रहने की जगह नहीं थी. सो मैन एनवायरमेंट कंफ्लिक्ट स्टार्टेड, वहां का क्लाइमेट थोड़ा बदलने लग गया, जानवर जैसे कि शेर बाघ वो बाहर आके लोगों को मारने लग गए, जानवरों को मारने लग गए. सो ऑल सच इंपैक्ट्स दैट वेर विजिबल इन द लॉन्ग रन forced the governments around the world to talk about environmental impact assessment before we take a developmental project. कुछ भी शुरू करने से पहले ही हमें इन चीजों को, निगेटिव इंपैक्ट्स को देखना जरूरी है. ओके, क्योंकि लॉन्ग रन में हो सकता है कि जो फायदा हम चाह रहे हो उससे कहीं बड़ा नुकसान हो जाए. ओके, सो इन 1970s, लेट 1970s, इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड कंसिडरिंग दिस थिंग. ठीक है, तो क्या क्या हुआ है जिससे कि हम इंपैक्ट को कम कर सकें, नुकसान को कम कर सकें, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पहले ही देख लेना है. यही चीजें हमें क्या है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में पढ़ना है. एंड सर्टेन थिंग्स दैट इफ वी फॉलो वी कैन मिनिमाइज द इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट. ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो हमें चाहिए. ओके, सो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. The environmental impact assessment or EIA is a process. The environmental impact assessment or EIA is a process or a study, is a process or a study which predicts the effect of a proposed, infrastructural project on the environment. Okay, so basically you can say that it is a tool which is available to the planners to ensure that the environment, the social structure, the social and economic structure is not negatively impacted, by the development projects. ओके, तो हमें यही इंश्योर करवाना है that it doesn't have any negative impact on the environment. ओके, इनडायरेक्टली भी कोई इंपैक्ट ना हो, इसी चीज के लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं. ओके, नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन दैट आई सेड कि तीनों चीजें इन्वॉल्व है. इट वाज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ओके, UNEP, which has given a proper definition for this EIA, United Nation Developmental Program. So we'll look at that definition only. Okay, UNEP. So write down UNEP defines UNEP defines EIA as a tool. UNEP defines EIA as a tool to identify the environmental, social and economic impact prior to the decision making
for the projects prior to the decision making for the projects. Okay, the basic aim, full stop के बाद लिखिए, the basic aim is to analyze and assess. The basic aim is to analyze and assess and predict the environmental impacts at an early stage, to predict the negative impacts at an early stage of the project. अनमोल बेटा बहुत खुश रहिए, सफल बनिए, ठीक है. And the thing that you always write, I have said many a times कि no human can be compared to the Almighty. Okay, even if I can give my best, I can become more better with the subject matter, with teaching and everything. But this should not be the thing that you have to do. ठीक है, I know that you have admiration for me, but such words are like, let's devote it to the Almighty only. ठीक है. कोई बात नहीं है अनमोल बेटा, केबीएस का पेपर आपने दिया, आप फेल हो गए. पास और फेल होना पार्ट है, लर्निंग कर्व का पार्ट है. ओके, आप में से बहुत सारे लोग और भी एग्जाम दे रहे होंगे. इवन इफ यू हैव फेल्ड, टेक इट इज इन ए पॉजिटिव स्ट्राइव. ओके, हम सारे फेल होते हैं. कोई क्लास 2 में हो जाता है, कोई 5 में होता है, कोई 10 में होता है. लाइफ में फेल्योर सबको देखनी है. ओके, इसलिए इन चीजों से प्रभावित नहीं होना है निगेटिवली. दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. एवरी फेल्योर टीचेज यू. ओके, अगर 100 नंबर का पेपर है, आपको 20 भी आते हैं, मैं वर्स्ट कंडीशन मान लेता हूं. ओके, लाइफ में किसी भी एग्जाम में, तो आपको यह समझना है कि 20 तक तो पहुंच गए हैं. ओके, और कट ऑफ क्या है कि कभी 100 तो होती नहीं है, तो थोड़ा और जोर लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे. ओके, सो पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से आगे बढ़ेंगे तो काम हो जाएगा. भव्य बेटा, एट एन अर्ली स्टेज के बाद, एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट और डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कुछ भी लिख लीजिए. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द इंडियन एंगल ऑफ द Indian angle of the environmental impact assessment. यही पूछा जाएगा. This is the thing that will be asked in exam. Okay, the Indian angle of the environmental impact assessment. Okay, Anmol, make sure that you are revising more. ठीक है, और रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पास हो जाएंगे अगली बार. ठीक है, थोड़ा समय लगता है, बट पास होने की गारंटी है अगर आप मेहनत करते रहेंगे. जो कर ही नहीं रहा है वो तो फेल हो जाएगा. सो कीप वर्किंग हार्ड एंड you'll clear the exam. Not only KBS, you'll clear the UPSC as well. Okay, every exam that you'll give in life, take it in a positive stride. Don't be upset. Indian angle of the EIA. Okay, the environmental impact assessment is started in India in 1976, 1977. ओके, और यहां अगर आप देखते हैं कि इंडिया में स्टार्ट हुआ है. ओके, सो दिस वाज नॉट स्पेसिफिकली फॉर एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हमने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट शुरू किया और हर चीज पे लागू कर दिया. ओके, सो इट वाज सम स्टेप इन दैट डायरेक्शन व्हेन वी स्टार्टेड इन 1976 एंड 78. मोर स्पेसिफिकली वी वर डूइंग दिस थिंग फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. और आपको समझना चाहिए कि ये अगर दिमाग में आया था तो क्यों आया होगा. ओके, बिकॉज whenever you are focusing on river valley projects, okay, whenever we are focusing on the river valley project, it means that we are going to make some dam. ठीक है, आप डैम बनाने वाले हैं, और डैम बनता है तो क्या होता है, it blocks the water. Okay, the dam blocks the water, and when it blocks the water, it submerges a lot of area.
it submerges a lot of area, and when it submerges a lot of area, it means that we lose some biodiversity. सबसे पहला इंपैक्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको डायरेक्टली दिखाई देता है. और ये बायोडाइवर्सिटी कैसा है? हैबिटेट लॉस की वजह से. ओके, दिस बायोडाइवर्सिटी विल लूज इट्स हैबिटेट. इसका क्या है कि घर गायब हो गया. ओके, एंड एनी इन्वायरमेंट विच यू लुक एट, अगर ये कोई एरिया है, इफ यू आर लुकिंग एट सम एरिया, ओके, एंड लेट अस से दैट देयर होल ऑफ द एरिया इज फॉरेस्ट. अगर ये सारा जंगल है, पूरा का पूरा जंगल है, और इसे हमने डुबाने की बात की, ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यूल सी, सबसे पहले फ्लाइट किसका होगा? द चेंजेस इन द एनिमल्स इज विजिबल विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एनिमल्स फ्ली, तो चेंज हो गया. जहां पे पहले शेर रहता था वहां अब मछलियां रहेंगी. ओके, हाँ शिवानी बेटा, नेचुरल फ्लो इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड, ठीक है, लेकिन आपको यह समझना है कि इंपैक्ट उस एरिया पे हम चेक कर रहे हैं, पानी तो वहां रहेगा. सो एनिमल्स फ्ली, सो दिस इज चेंज इज विजिबल इन शॉर्ट टर्म. ये शॉर्ट टर्म में ही बदल जाएगा. ओके, द मोमेंट यू डिसाइड दैट विल सबमर्ज, द फर्स्ट डे विल सबमर्ज. जो बच पाएंगे बच जाएंगे, बहुत सारे मर जाएंगे. ओके, जो छोटे छोटे एनिमल से भाग नहीं सकते, पानी आने लग गया, वो डूब के मर जाएंगे. सो दिस इज एनिमल लाइफ. यूल सी ए सर्टेन चेंज, बट एवरी लैंडस्केप दैट यू आर लुकिंग एट, इट बिहेव्स एज ए इकोसिस्टम. ठीक है, हर एक जानवर, हर एक पौधा एक दूसरे को हेल्प कर रहा है. इट इज हेल्पिंग, एंड इन दिस प्रोसेस दे हैव फॉर्म्ड ए सिस्टम जहां ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. But if it comes to the plant life, okay, plant life साथ साथ change नहीं होता है, and this is the reason that we do not see the changes in a shorter span of life. The plant life changes over 70-80 years. Okay, least भी आप मानेंगे कि सारा जो सराउंडिंग है वो चेंज होने में 70-80 साल लग जाते हैं. And because of this, initially whenever the projects were being done, कभी हमें पता ही नहीं चलता था कि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 जनरेशन खत्म. ठीक है, 70-80 का मतलब क्या है? जो आज एडल्ट है वो बूढ़ा होकर मर जाएगा, और जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि कभी वहां पे कुछ और था. ओके, सो फॉर आइडेंटिफाइंग दीज प्रॉब्लम्स, ओके, जहां पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट था, इट विल बिकम डेसिडियस, डेसिडियस मे बिकम समथिंग मार्सी लैंड, वेटलैंड बन जाएगा. ओके, सो मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड वर हैविंग इल इंपैक्ट्स. ठीक है, अब इसी का क्या है सोशल एंगल अगर आप देखते हैं. ओके, हैबिट, यहां भी क्या है, सेटलमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड. मेधा पाटकर का नाम आपने सुना होगा. Okay, people are forced to migrate, so protest, law and order situation. Okay, and if you look at the economic angle, loss of livelihoods, और loss of livelihoods ultimately क्या करता है? सोशल ऑर्डर को तोड़ देता है. ओके, बिकॉज व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड, यू विल सी दैट देयर इज मोर इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट एंड बर्गलरी. ठीक है, जो भी आप आज भी देखिए, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जहां भी होते हैं वो कहां होते हैं? द स्टेट्स विच आर रिलेटिवली पुअर, इवन इन इंडिया. जो भी देश आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा गोलियां चल रही है, आपस में मार रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, these are the people where the economic situation is not good. और इकोनॉमिक सिचुएशन को आप सोशल सिचुएशन से अलग नहीं कर सकते. ओके,
एंड दिस वाज द रीजन दैट गवर्नमेंट फर्स्ट फोकस्ड ऑन दिस थिंग, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इन्वायरमेंट और इन चीजों पे बहुत ज्यादा है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिवर वैली प्रोजेक्ट ही क्यों चुना गया था. सो नोट डाउन दिस क्विकली, बिकॉज इस स्टेटमेंट में मैं सिर्फ ये लिखवाने वाला हूं that river valley project was the first thing that Indian government started doing for environmental impact. Okay, so note down whatever is written on the board so that if there is a question, और इसी में से क्वेश्चन क्या आएगा, मेंस में आएगा तो आपको इन एंगल्स पे लिखना है, और प्रीलिम्स में ये पूछेगा हाउ डू वी आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट आर हैपनिंग. बिकॉज अगर हर एनिमल भी भाग गया, आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ हिस्सा डूब गया है, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि वहां इन्वायरमेंट चेंज हो गया है. ओके, नॉट इवन ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन, मे बी 20 ईयर्स के बाद हमें दिखता है कि बहुत सारा चेंज हो रहा है. ओके, सो राइट डाउन द प्लानिंग कमीशन asked the Department of Science and Technology. The Planning Commission asked the Department of Science and Technology in the year 1976-77 to examine the impact of river valley projects. To examine the impact of the river valley projects on environment. Okay, so the environment, full stop के बाद लिखिए, the environmental impact assessment as a wholesome idea was introduced in the year 1978. The environmental impact assessment as a wholesome idea was first implemented in 1978. And later, the EIA legislation, EIA legislation included other projects as well. And later, EIA legislation included other projects as well. Okay. In the year 1994, ठीक है, इसे इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर डाल दिया गया. सो राइट डाउन इन द ईयर 1994 in notification on the EIA, put it under the Environmental Protection Act 1986. Environmental Protection Act Protection Act 1986. So the question that you'll see in exam is which law governs the EIA. ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं इसको, EIA is under this. ओके, और which करके पूछ के आपको ये पूछा जा सकता है. सो अंडरलाइन इट, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ओके, so many notifications have been issued by the government for the assessment. Okay, और अब environmental clearance फाइनल जो देता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज. ठीक है, आज की डेट में तो वो लिख लीजिए. द environmental clearance is granted by the impact assessment agency, of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Is granted by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. Okay,
since 2006, when the new EIA legislation was framed. When new EIA legislation was framed. ओके, तो फाइनल जो अलाउ करती है वो मिनिस्ट्री है. कब से कर रही है? 2006 से कर रही है. ओके, सो the notification that was given in 2006, full stop, the notification that was given in 2006 has made EIA mandatory, has made EIA mandatory for the projects like mining, has made EIA mandatory for the projects like mining, thermal power plant, river valley projects, projects related to infrastructure of road, railway, port, airports, road, railway, airports, comma, industries. Okay, industries, including even those which are very small, like electroplating industry, like electroplating industry, which can have negative environmental impact, Okay, so the question can be in exam कि which are the projects which are compulsorily under this. तो जो भी प्रोजेक्ट बनता है जिसके निगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं वो इसके एम्बिट में आता है. ठीक है, तो लेना ही लेना है क्लियरेंस अगर आप कुछ भी करने जाते हैं. एंड इफ समबडी डज नॉट डू दैट, ओके, अब देखिए जो अभी अभी भव्य ने कहा था, हमने स्टार्ट किया था जब क्लास, कि केरला पे है, केरला पे फाइन लगा है. इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस लेजिस्लेशन ऑफ 2006 has put the onus on state. ठीक है, so this legislation has put the onus on state to take care of it. अगर किसी स्टेट में ये नहीं हो पा रहा है तो वो गवर्नमेंट की गलती है. ओके, सो राइट डाउन, the onus of clearing the projects, is on the state government, depending on the size and capacity of the project, since 2006. ठीक है, सो वहां पे क्राइटेरिया बनाया गया है कि कुछ स्टेट्स डायरेक्टली क्या है कि इसको देख सकते हैं और वो अलाउ कर देंगे. ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट द स्टेट हैज टू डू इन इट्स ओन प्रोजेक्ट्स.
एंड इफ इट फेल्स, कोई चीज स्टार्ट कर दिया और नुकसान होगा, देन दे कैन बी फाइंड, लाइक अभी अभी हुआ, ठीक है. सो इन ऑल, राइट डाउन, इन ऑल EIA is compulsory for almost 30 types of projects. In all, EIA is compulsory for 30 categories of projects. And they get environmental clearance, and they get environmental clearance only after EIA is done. And they get environmental clearance only after EIA is done. Okay. Now there are certain important aspects of EIA. कुछ चीजें हैं जो environment में प्रोजेक्ट से पहले करनी ही करनी है. Important aspects of EIA. Okay. क्योंकि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में अभी तक जो हमने बात की, इट सीम्स दैट वी हैव टू डू समथिंग ओनली बिफोर द प्रोजेक्ट, उससे पहले ही करना है, बट दिस इज नॉट ट्रू. इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में, ओके, बिफोर, जब प्रोजेक्ट चल रहा हो तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम प्लस पोस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. Okay, so the other type of question that you can get in exam is environmental impact assessment has a role only before the start of the project, during the project, after the project, only one and two, 1, 2 and 3, that kind of options you can get. Okay, so these important aspects are risk assessment. पहले तो risk क्या क्या है, that we'll do this. Then when you have changed the environment because of the project, तो project management, okay, environmental management is second aspect, जिसे आपको हर स्टेज में करना है. environmental management, okay, how you'll manage, और ये पॉइंट अपने आप में बताता है कि हर स्टेज में असेसमेंट का रोल है environment. And the third one is post project monitoring. The post project monitoring, it is also one of the important aspects. Okay, now let us look at the components of the environmental impact assessment. ये चीजें तो होनी है, ठीक है, ये factors हैं, but what are the components on which this impact assessment has to be done? So now we'll look at the components of the environmental impact assessment. ओके, बेसिकली अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच यू विल बी डूइंग दिस इंपैक्ट असेसमेंट, अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी, दो दीज थिंग्स आर डन बाय द एक्सपर्ट कमिटी, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी कंसिडरिंग. पूरा इन्वायरमेंट आप पढ़ चुके हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? The components of environment to be looked into. What are the things that you will be looking at? Shivani, Bhavya, Anmol, everyone else. बताइए. हवा, पानी, धरती और जो जिंदा है वहां. हाँ भव्य,
सो द कंपोनेंट्स की जब भी हम बात करेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ ए एनवायरमेंट आर व्हाट, सिंपली यू विल बी लुकिंग एट द एयर क्वालिटी, एयर एनवायरमेंट, the water environment, the land environment, जो उसके ऊपर रहते हैं, जो burrowing animals है उसके नीचे रहते हैं, land environment, and biodiversity. Okay, so basically this you can even guess, okay, that they'll be looking at biodiversity, land environment, water environment and air environment. But under environmental impact assessment some of the things are specified. ठीक है, क्योंकि broadly तो आपको कुछ देखना ही नहीं है. Very good अभिषेक. ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो यू कैन नॉट बी लाइक जाओ और लोगों को किस में इंटरेस्ट है ये पूछ के आओ. somebody sends you कि go and ask people what they are interested in. Okay, so this is a open question. When we'll come back with the answers, तो आपको क्या है कि उसको आप समराइज नहीं कर पाओगे. Okay, but somebody says कि go and ask someone कि whether you are interested in music, art forms, ऐसे कैटेगराइज कर दे कि आर्ट फॉर्म में है, ठीक है, या यू आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म, यू आर इंटरेस्टेड इन, तो 4-5 कैटेगरी 10 कैटेगरी बना के दे दी जाए, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू. यू जस्ट हैव टू पुट द ऑप्शंस, गिव देम ऑप्शंस कि ये इंटरेस्ट है आपका, वो बताएंगे हाँ ये इनमें से 2 है, इनमें से 3 है. इट बिकम्स इजी टू समराइज द थिंग. ओके, सो स्पेसिफिकली द EIA हैज this thing. Okay, so this is गोविंद क्षिति जल पावक. ठीक है, जल तो ठीक है, क्षितिज तो आसमान होता है, क्षिति क्या होती है? पावक तो एयर से, क्षिति जमीन है. व्हाट इज दिस? या आप पूरा नहीं लिख पाए. ओके, सो राइट डाउन, विल राइट डाउन द क्राइटेरिया. ये आपको याद रखने हैं जो क्राइटेरियाज हैं. ओके, इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द थिंग्स विच विल बी चेक्ड अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. ओके, रिलेटेड टू एयर एनवायरमेंट. ठीक है, तो इसमें जो जो हम लिखेंगे ये आपको याद होने चाहिए, बिकॉज दीज आर चेक्ड अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखिए एयर एनवायरमेंट में, the quality of the ambient air present, quality of ambient air present. हाँ, वो वही क्षितिज होता है ना, वो क्षितिज, आसमान, स्काई, क्षितिज. The quality of ambient air present and predicted, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट भी करना है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा. The quality of ambient air present and predicted. Okay. Second point, some meteorological data. Like speed of wind, write down meteorological data like speed of wind, direction of wind, humidity, etc. ओके, अवधि में क्षिति ही कहते हैं. अच्छा, ये मुझे पता नहीं था. ओके, हिंदी इट इज लाइक क्षितिज. मेट्रोलॉजिकल डेटा, wind speed, ambient pressure, ठीक है, humidity, so these kind of things. Okay, then quantity of emission that can be added to the atmosphere by the project. The quantity of emission
that will be added by the project. Quantity of emission that will be added by the project. हाँ दीप, ठीक है, that is more better description I guess. ठीक है, तो अब क्वांटिटी ऑफ इमिशन है तो इम्पैक्ट ऑफ दैट इमिशन ऑन द एरिया, इम्पैक्ट ऑफ इमिशन ऑन एरिया. Okay, so we'll also be looking at the impact of the emission on the area. Next is desired pollution control measures and air quality standards. ये भी कैलकुलेट करना है. Desired pollution control measures and air quality standards. अब ये तो आपका हुआ ओवरऑल. ओके, नाउ यू नो दैट एयर में ही क्या है, नॉइज पॉल्यूशन भी आता है. सो देयर इज सर्टेन रिकमेंडेशंस अंडर नॉइज. ठीक है, एयर पॉल्यूशन में नॉइज के लिए भी रिकमेंडेशन है. ओके, the level of noise present and predicted, level of noise present and predicted. Okay, because noise levels disturb the environment. Okay, and then a strategy to reduce it. Similarly, स्ट्रेटजी, वहां स्टैंडर्ड देख रहे थे ओवरऑल, यहां स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन. सो दे हैव टू कम अप विथ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस नॉइज. ओके, टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन. सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वाटर इन्वायरमेंट. इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कंपल्सरी पॉइंट्स इवन इफ यू आर राइटिंग इन एग्जाम. ठीक है, मान लीजिए मेंस में एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लगभग लिखने होंगे. स्पेस इतना नहीं होगा बट सम ऑफ दीज विल बी इन प्रीलिम्स. डायरेक्टली दे लास्ट के दिस इज पार्ट ऑफ द EIA प्रोसेस फॉर एयर इन्वायरमेंट, देन लिस्ट डाउन. अगर ये नहीं है तो वो कंपल्सरी नहीं है. These are compulsory things to be done. Okay, water environment, existing ground and surface water, estimating existing ground and surface water. Estimating the ground and surface water. Next, the potential damage due to the project. The potential damage due to the project, due to the project, due to effluent emissions, ड्यू टू एफ्लुएंट इमिशंस. आप कुछ भी क्या है कि प्रोजेक्ट करेंगे तो वाटर में कुछ जाएगा. ठीक है, बह के. एफ्लुएंट इमिशंस, एफ्लुएंट्स इमिशंस एंड लैंडस्केपिंग. आप मिट्टी खोदेंगे तो क्या है, कुछ मिट्टी का हिस्सा पानी में चला जाएगा. सो एनी फॉर्म दैट इज रीचिंग द वाटर, क्या क्या जा सकता है वो एस्टिमेट करना होता है. ओके, नेक्स्ट इज
land environment. Okay, land environment. So study of soil characteristics, स्टडी ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंड इन्वायरमेंट में क्या करना है, स्टडी ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंड यूज, स्टडी ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंड यूज, कॉमा ड्रेनेज पैटर्न्स, कोई अगर झील है वो उसके ऊपर बह रही है तो किस साइड से जा, सॉरी रिवर है तो बह रही है, झील है तो कैसे है, ओके, ड्रेनेज पैटर्न, and likely adverse impact, and likely adverse impact, impact on historical monuments and heritages, impact on historical monuments and heritages, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, बाकी सब आपके दिमाग में ऐसे ही रह जाएगा, ओके, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक थिंग दैट यू लॉजिकली रिमेंबर कि दिस ये तो होगा, बट दिस इज समथिंग कि हिस्टोरिकल था या नहीं था, एग्जाम में यही कंफ्यूज करता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें हिस्टोरिकल वाले के लिए लिखा था कि नहीं आता, यू डेफिनेटली गेट कंफ्यूज इन एग्जाम, एवरीबडी goes through this thing, even if you'll revise, तब भी कभी कभी ये सब बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं जहां इन्वायरमेंट की बात हो रही है और अचानक मॉन्यूमेंट आ गया, ठीक है, सो दिस कैन बी, सो इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, ओके, एंड फाइनली द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, दिस इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, okay, the biological environment, flora and fauna, a study of the flora and fauna in the project area and impact on them, a study of the flora and fauna and the impact on them, and same point, potential damage due to the project, comma effluents, emissions, landscaping, potential damage due to the project, emissions, comma effluents and landscaping, okay. Next, the amount of biological stress, that can be predicted, the amount of biological stress that can be predicted, ठीक है, उनके मेटिंग पैटर्न्स में चेंज आएगा, रिप्रोडक्शन में चेंज आएगा, माइग्रेशन पैटर्न्स में चेंज आएगा, ओके, हैबिटेट लॉस होने से बहुत कुछ होता है, ओके. नाउ दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी डन, बट this is not the only thing that has to be done in the environmental impact assessment. इसमें एक cyclical process है, okay, and all these activities are to be done. जो भी हम discuss कर रहे हैं ये सारे करने हैं, okay, but there is a cycle, there are certain steps that are involved in environmental impact assessment. Now we'll talk about those steps, the things that the committee will be doing, okay. So दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, और हम स्टेप्स टू बी टेकन कह रहे हैं, बट एनी स्टेप कैन इंटर अनदर स्टेप, ठीक है, एक किया तो दूसरा किया, फिर वापस जाके उसको चेक किया कि ये हो रहा है कि नहीं, ओके. सो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन EIA. ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये बार बार क्या है, प्रोसेस घूम के दूसरी स्टेज में जा सकता है अगर किसी भी स्टेज पे गड़बड़ी दिखाई दे, ओके. सो फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग, सबके बारे में हम देखेंगे, पहले नाम देख लीजिए, ओके. द फर्स्ट स्टेप इज
स्क्रीनिंग. ओके, सो गोइंग टू द एरिया, देखना कि कैसा है नहीं है. सेकेंड वन इज स्कोपिंग. ओके, क्या क्या स्टडी करने का स्कोप है, काम क्या हो सकता है नहीं. ओके, देन थर्ड वन इज कलेक्शन ऑफ द बेसलाइन डेटा. ये स्टेजेस पूछा हुआ है पहले भी. कलेक्शन ऑफ द बेसलाइन डेटा. ओके, मान लीजिए कलेक्शन ऑफ द बेसलाइन डेटा हमने लिया एंड डेटा सजेस्ट दैट जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो सही नहीं है, तो क्या है, यहां से आप फिर घूम के यहां जा सकते हैं. ओके, सो दिस इज साइक्लिकल इन नेचर, जो मैंने कहा था. ओके, आपने स्क्रीनिंग की, स्कोपिंग की, लगा कि गड़बड़ हो गया, देन अगेन यू विल गो टू द प्रीवियस स्टेप एंड देन फिर सारा करेंगे. सो एनी स्टेप देयर इज अ फॉल्ट, यू हैव टू गो टू द फर्स्ट, फिर से सारा करना है. ओके, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा, इंपैक्ट प्रिडिक्शन. सो इफ यू रीच एनी ऑफ द स्टेजेस, प्रिडिक्ट भी किया और कुछ लगा कि गड़बड़ था पहले ही एस्टिमेट में, फिर अगेन स्क्रीनिंग. मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट. एंड EIA रिपोर्ट. Okay, again if you find in this stage कि something is wrong, it is cyclical, you'll go back. Okay, then you'll have public hearing. You'll put the thing in public domain. आप public domain में सारा डालेंगे, public will tell कि whether they are satisfied or not. If they are not satisfied, ज्यादा problems हो रही हैं, again go do the screening. Okay, then finally you have, यहां से क्या है, it moves to the decision making stage. अब पब्लिक हियरिंग का जब आ जाता है, ओके, एंड दीज एरोज आई एम शोइंग ओनली टू शो दैट इट इज साइक्लिकल इन नेचर. ओके, किसी स्टेज से भी आप किसी स्टेज में जंप बीच में नहीं कर सकते. यू हैव टू गो टू द फर्स्ट स्टेप जहां गड़बड़ी मिली. ओके, देन फाइनली मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्लान. So this is a very tedious process, and because of this thing many times you'll see that the government says because of environmental impact assessment, okay, काम हो ही नहीं पाता है. You'll see that most of the developmental projects in the country which are big, okay, which cover a large area, they are stuck because of this environmental impact assessment. क्योंकि एक बार बीच में कहीं भी गलती होती है, पूरा का पूरा क्या है, जब तक आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, यहां के बाद ही, ओके, डिसीजन मेकर्स ने भी अगर बोला कि ठीक नहीं है तो फिर से पूरा स्टेज, यहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है. मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मॉनिटरिंग स्टार्ट की फिर भी गड़बड़ी हुई, अगेन क्या है कि यू विल बी गोइंग बैक टू दैट थिंग कंप्लीट होने से पहले ही. ओके, सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विथ दिस थिंग. एंड इसके बाद फाइनल स्टेज जो है, दिस इज असेसमेंट. ओके, हर स्टेज पे असेसमेंट. यहां भी हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स दैट वी आर डूइंग. ओके, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको चेक करते रहना है कि कोई अल्टरनेट वे है क्या जो इससे बेहतर ढंग से इस चीज को दिया जा सके. ओके, डिलिनिएशन ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स, जो हम कर रहे हैं उसमें हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं. डिलिनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स. ओके,
सो इफ द मेजर इज वर्किंग, इफ इट इज नॉट वर्किंग, नहीं वर्क कर रहा है तो फिर से उसको रिव्यू करो कि कैसे वर्क करेगा. स्पेशल बेटा खुश रहिए, यू आर लेट. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से देख लीजिएगा, बाद में अभी समझते जाइए जो अभी बात हो रही है. ओके, देन फाइनली environmental impact assessment report. So any of the stages, whatever you are doing, the final report takes a lot of time to come. ठीक है, मॉनिटरिंग प्लान का भी इतनी मॉनिटरिंग एंड ये हो रहा है, ऑन ग्राउंड जाने से पहले बहुत सारी चीजें. ओके, सो मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान प्रोसेस हर स्टेज से, देयर इज अ टीडियस प्रोसेस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेनी अ टाइम्स व्हाट वी सी, कमिटी कौन बनाती है? ओके, द कमिटी इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड लेट्स से इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि हमें ये प्रोजेक्ट करना ही है, कुछ भी हो जाए, nobody can do anything. Okay, the reason, best of the example, you must have heard of the Great Nicobar project of Niti Aayog. Okay, this is a project which had an EIA report. It is most controversial report of recent times. Still the murmurs are going on. The project को पास कर दिया गया है. ओके, बिकॉज निकोबार has no coral reef. रिपोर्ट सेज, ठीक है, रिपोर्ट क्या कहता है कि द निकोबार हैज नो कोरल रीफ स्ट्रक्चर where the developmental project is being implemented. But the government documents जो अलग हैं, जो ग्रेट निकोबार का सर्वे हुआ था, ओके, other surveys suggest that there is 169 square kilometer of reef structure. So sometimes even the reports are tweaked in order to complete some of the projects. Okay, so this is the most controversial thing that has happened in last 2 years. इस पे इतना प्रोटेस्ट हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते. ओके, सो बट एटलीस्ट इससे क्या हो रहा है, द प्राइवेट प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द ओनली इन्वायरमेंट ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव्स, उन्हें रोक दिया जा रहा है. ओके, but for faster development, if the government is adamant, you cannot do anything. No environmentalist can. Even National Green Tribunal किस पे डिपेंड करती है? The report says कि ये है. ओके, देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट एजेंसी डिक्लेयर कर दे कि हम डेड हैं, ठीक है, आपने ये कंट्रोवर्सी सुनी होगी, अगर कोई लिख दिया जाए डेथ सर्टिफिकेट गलती से किसी का आ जाए, ओके, इट विल टेक ईयर्स टू प्रूव कि यू आर अलाइव. जाके भी बोलोगे मैं हूं, ये नहीं माना जाएगा. ओके,
द प्रॉब्लम इज द कोर्ट ओनली लुक्स एट द रिपोर्ट, दे नो, हो सकता है कि कोई जज ही वहां घूमने गए हो, उन्होंने देखा हो, बट ही कैनॉट से कि आई हैव सीन दैट, वो है वहां पे। एंड व्हेन इफ द गवर्नमेंट वांट्स, आप भी कल को क्या है ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत बार ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां सच कुछ और है और आपको करना कुछ और है। ओके, एंड दिस इज व्हाट यू लर्न इन एथिक्स एज वेल। न्यूट्रलिटी, मीडिया में जाके चिल्लाने नहीं लगेंगे कि गलत करवा रहे हैं। वाई पीपल आर पनिश्ड, अभी एक महाराष्ट्र में, यू मस्ट हैव हर्ड दैट ए कांस्टेबल वाज सस्पेंडेड बिकॉज he complained to the president of India about his inspector, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ एथिक्स है। देयर इज अ प्रॉपर चैनल फॉर ग्रीवांसेस। ओके, तो जॉब करने वाले को ये चीज ब्यूरोक्रेसी में आपको समझना है, आपका रोल डिफाइंड है, ग्रीवांसेस कैसे आप करेंगे। अभी आईपीएस एंड आईएएस डी रूपा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हर नेम। अभी एक आईएएस से उनकी झड़प हो गई, आईपीएस हैं वो, और दोनों को क्या है कार्य मुक्त कर दिया गया, बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे वेंट टू मीडिया फॉर जस्टिस। दे डिड नॉट यूज, आईएएस आईपीएस होके भी ऐसी गलतियां होती हैं, ठीक है। दो महिलाओं में झगड़ा हुई जो कि एक आईएएस और आईपीएस है, एंड फाइनली दे वेंट टू द मीडिया एंड दे वर, अगर इस पोजीशन पे होते तो सस्पेंड होते, बट दे आर एट हायर पोजीशन, सीनियर आईपीएस, सीनियर आईएएस, ओके, मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो दे वर, उनको ऑफिशियल पोजीशन से हटाया गया और कोई चार्ज नहीं दिया गया, नो न्यू चार्ज वॉज गिवन। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हाट विल कम फॉर यू इन फ्यूचर, तो अभी से आपको पता होना चाहिए। सो गवर्नमेंट एथिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी इज दिस, कि आप अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखेंगे, ठीक है। एथिक्स इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि द एथिक्स, ऐसा एथिकल हूं करके और कुछ भी बोल देंगे वो नहीं है। मोरालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, सब में अंतर है। ऑनेस्टी इज व्हाट, कि यू आर केप्ट, यू आर एट ए पोजीशन टू स्लैप समवन, आपकी नौकरी है कि थप्पड़ मारना है, कोई भी आए आप थप्पड़ जड़ दे रहे हैं, इट इज ऑनेस्टी। ओके, इंटीग्रिटी क्या है कि थप्पड़ क्यों मारूं, इसने गलती नहीं की है। ओके, इवन व्हेन इट इज सेड इन द रूल बुक कि डोंट स्लैप, तो वो है इंटीग्रिटी, ठीक है। चोर चोरी कर रहा है, वो उसकी ऑनेस्टी है, उसका काम है चोरी, बचपन से उसको सिखाया गया कि चोरी तुम्हारा काम है। ओके, बट ही इज नॉट इंटीग्रल। सो ये सब चीजें इसलिए पढ़नी होती हैं। ओके, सो लेट अस कम बैक टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। Okay, so we'll look at the steps in a little detail, ठीक है। So first screening, first stage, ठीक है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ मूवीज, यू गो यू चेक कि हीरो ने अच्छा काम किया है कि नहीं, ज्यादा पैसा खर्च करके बनाया और फालतू स्टोरी थी। तो स्क्रीनिंग इज सिंपली हाउ मच इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड, what type of area is there, so that kind of studies is simply screening, going and checking the area, looking at the various components, okay, simply observing and making a report. गोविंद बेटा, पुरुष महिला सब झगड़ते हैं इट इज नॉट अबाउट ओनली महिलाएं, सारे झगड़ते हैं। अभी आपने सुना होगा कि अपने ऑफिसर्स को बहुत सारे पुलिस वाले गोली मार देते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके। तो यहां तो क्या है कि बातचीत करके सेटल कर लिया। महिला होने का यही फायदा है, वुमेन आर नॉट लाइक अस। आदमी कैसा होता है, कॉलर पकड़ लेगा, जोश में आ जाएगा, भले पिट जाए, ठीक है। वुमेन आर नॉट लाइक दैट, ओके, दे आर मोर डिसेंट, 99.99% ऑफ देम, ठीक है। उनमें करुणा ज्यादा होती है, हमारी तरह आदमी की तरह नहीं होते हैं। ओके, बैल, वी बिहेव लाइक बुल्स, ठीक है। वो बचपन से बोलते हैं कि नहीं तुम मर्द को दर्द नहीं होगा, जाओ लड़ाई करो, पिटाई खा के आ जाओ। सो इट इज नॉट, देवर वुमेन तो उतने पे भी बहुत शांति से उन्होंने निपटा लिया है। मेल होते तो वो धरना भी दे रहे होते कि मुझे क्यों कार्य मुक्त किया गया। ओके,
So screening, the project plan is screened. The project plan is screened for scale of investment. Sorry, the project plan is screened for scale of investment. The project plan is screened for scale of investment. Location, location and the type of development. Location and the type of development. And if the project needs some statutory clearance, legal hurdle तो नहीं आ जाएगी, and if the project needs some statutory clearance, if the project needs some statutory clearance, ये भी स्क्रीनिंग में चेक किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज स्कोपिंग. ठीक है, अब स्कोपिंग का मतलब क्या क्या स्कोप है हार्म होने का. ठीक है, क्या इंपैक्ट होगा, कैसे होगा, कितना एक्सटेंट होगा, सारे एरिया पे होगा, इसके 4 ही हिस्सों पे होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. स्कोपिंग. So the project's potential impacts, the project's potential impacts, comma zone of impacts, comma zone of impacts, mitigation possibilities, zone of impacts, mitigation possibilities, and the need for monitoring. ठीक है, कितना मॉनिटर करना होगा अगर डैमेज हुआ तो, एंड द नीड फॉर मॉनिटरिंग. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ द बेस लाइन डेटा. कलेक्शन ऑफ द बेस लाइन डेटा. कलेक्शन ऑफ द बेस लाइन डेटा. बेस लाइन डेटा is the environmental status of the study area. Environmental status of the study area, यानी अभी जो हमने देखा था एयर में क्या क्या, एयर इन्वायरमेंट में क्या है, लैंड इन्वायरमेंट में क्या है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, दैट डेटा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, लैंड कैरेक्टरिस्टिक, लैंड यूज, दैट काइंड ऑफ डेटा. ओके, नेक्स्ट इज impact prediction. Impact prediction. So it looks into positive, negative, reversible, irreversible. कुछ डैमेजेस ऐसे होंगे जो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे. शेर भाग गया तो भाग गया, कभी लौटा ही नहीं, क्योंकि वहां पानी, अब मछली आएगी, वहां पे शेर तो आएगा नहीं. ओके, सो इम्पैक्ट प्रिडिक्शन. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, the positive and negative impacts which are of reversible and irreversible nature, which are of reversible and irreversible nature, comma, which can be a temporary or permanent change, which can be a temporary or a permanent change. Okay, अब रिवर वैली प्रोजेक्ट टेम्पररी और परमानेंट का मतलब कोई एरिया सबमर्ज हो रहा है, लेकिन आप जब ब्लॉक कर रहे हैं तो क्या है, आपका टारगेट है कि सिर्फ इतना एरिया सबमर्ज हो, बट व्हेन यू ब्लॉक, यू व्हाट यू डू, आपने थोड़ा ज्यादा सबमर्ज कर दिया. ओके, एंड देन यू अलाउ द वाटर टू गो, तो क्या होता है कि यहां से पानी रिसीड कर जाएगा, यानी टोटल पानी यहीं तक रहेगा. दिस एरिया विल बी अवेलेबल फॉर द environment and other habitants of that environment. Okay, so क्या लिखा है आपने, इरिवर्सिबल, टेम्पररी, परमानेंट. इंपैक्ट्स, इंपैक्ट्स कॉमा करके, इंपैक्ट्स नीड टू बी प्रिडिक्टेड, needs to be predicted based on the sound understanding, based on the sound understanding
by the agency involved, based on the sound understanding by the agency involved. Okay. Next is mitigation measures and EIA report. Okay. अब मिटिगेशन मेजर्स मतलब आप किसी चीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे, इफ सम प्रॉब्लम इज देयर. ओके. So the EIA report should include the actions and steps, for preventing, minimizing or some of the compensatory measures to be taken. अगर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो आप कंपेंसेशन कैसे कर सकते हैं, 500 पेड़ लगा के लोगों को 5,000 रुपए दे के, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके. नेक्स्ट इज पब्लिक हियरिंग. Public hearing on completion of the EIA, report, the public and environmental groups living close to the project are informed and consulted. उनको हम बताते हैं कि ऐसा हो रहा है. are informed and are consulted. Okay. Next is decision making. Okay. अब यहां डिसीजन लेने वालों का रोल है. The impact assessment authority, along with the experts, consult the project in charge, along with the consultant, to take the final decision, keeping in mind the EIA and the environmental management plan, EMP, environmental management plan. Keeping in mind EIA and environmental management plan. Okay. Now monitoring and management of environmental management plan. Monitoring, implementation and management लिख लीजिए. Monitoring, implementation and management of the EMP, environmental management plan. Okay. The various phases of the implementation of the project, are monitored. Okay. Next is the assessment of the alternatives, delineation of mitigation measures, environmental impact assessment report. ठीक है. This one, ये हेडिंग डाल लीजिए. ओके. एंड यहां पे भी क्या है, दिस इम्पैक्ट के बाद भी आपका रिस्क असेसमेंट चलता रहता है. ओके. एड वन मोर स्टेज,
रिस्क असेसमेंट इज ऑलवेज देयर, हर स्टेज पे कोई ना कोई रिस्क है. सो दिस विल, जो डिस्कवर होगा प्रोजेक्ट के दौरान, तो रिस्क असेसमेंट भी है हमेशा. ओके, सो फॉर एवरी प्रोजेक्ट, पहले इसमें लिख लीजिए, फॉर एवरी प्रोजेक्ट, the possible alternative should be identified. The possible alternative should be identified, and the components must be compared, and the components must be compared. Okay, full stop. The project, the assessment of the alternative, the assessment of the alternative should not only be restricted to, the project location, should not only be restricted to the project location, but also the technology, ठीक है. तो आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं, आपने बहुत सारी स्टडी की और फिर उसके बाद आपने देखा कि यही चीजें जो हम यहां कर रहे हैं कहीं और करेंगे तो क्या वो हो सकता है या नहीं, यानी डबल प्रोसेस, फिर से ये वाली चीज दूसरे के लिए भी. ओके, एंड देन जो टेक्नोलॉजी यूज करके हम कुछ बना रहे हैं उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी है जो कम हार्म करे, तो टेक्नोलॉजी एंड एरिया दोनों के अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश. ओके, once the alternative is reviewed, a mitigation plan should be designed for choosing an option. Once an alternative is assessed, and mitigation plan should be made for the a mitigation plan should be made for the selected option, and finally the risk assessment. Okay, assessing continuously the hazards that can be associated with the development of the project. Assessing continuously the hazards that can be associated with the project, ठीक है. तो ये सारे प्रोसेस बार बार करने किसी भी स्टेज पे आया. ओके, सो आपको करना होगा. नाउ कमिटी के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, द कमिटी दैट विल टेक. ओके, सो विच इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल अप्रेजल. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल अप्रेजल. अब यहां पे क्या है कि द अप्रेजल कमिटी हमने क्या देखा था, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, सो व्हेन दिस फाइनली रिपोर्ट रीचेस देम, तो वो इसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि इसके एंगल्स क्या है. ओके, और जो डेटा है इट इज नाउ गिवन टू द प्रोजेक्ट ऑथोरिटीज. अभी तक क्या है, एक कमिटी जिसको, एक एजेंसी को जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी EIA, ज्यादातर चीजें वही कर रही थी. बट नाउ द रिपोर्ट इज विद द गवर्नमेंट, सब कुछ पता कर लिया है, अब ये वो प्रोजेक्ट ऑथोरिटी को दे देते हैं. ठीक है, एंड इट इज डन बाय द अप्रेजल कमिटी. सो राइट डाउन, एन अप्रेजल कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Okay, a appraisal committee is
constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which scrutinizes the project based on the data, which scrutinizes the project based on the data provided to it, by the authorities. Okay, the ministry can choose to discuss these details. The ministry can choose to discuss these details with other experts on specific issues and with investors also whenever necessary. ठीक है, मान लीजिए कुछ करते हुए गवर्नमेंट को पता चलता है कि एक स्टेप हमने किया है, खर्चा बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो जो इन्वेस्टर उसको बताना होगा कि भाई देखो ये पहले नहीं हुआ था, डिटेल पता नहीं था, नाउ बढ़ जाएगा, तो आप करने वाले हो नहीं करने वाले हो. ओके, आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल द अवेलेबल facets, after looking at all the available facets, मैंने हर एंगल से, all the angles, okay, all the facets, the government or the ministry gives the clearance for the implementation of the project. अब इसमें एक क्लॉज है जिसके बारे में पूछता है. ओके, जैसे ही रिपोर्ट मिल जाती है, ओके, इट इज गिवन टू द अप्रेजल कमेटी, द डिसीजन हैज टू कम विद इन 90 days. आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं 90 दिन में बताना होगा. ओके, इट इज नॉट लाइक कि अगले साल देखेंगे. हमारा क्या है कि जो कंपनी बना रही है वो हमें सपोर्ट नहीं करती है, डोनेशन नहीं देती है. ओके, they cannot do like that. Within 90 days you have to give the clearance or you have to say no. Okay, in case of all the projects where the project components have been submitted, and complete information has been provided, the project must be decided within 90 days. Okay, the project must be decided within 90 days. Okay, and for this thing the government has 6 regional offices. Okay, क्योंकि अभी क्या है, दिल्ली सबको ले आके भेज के बताना is not easy. So 6 regional offices, ये पूछा जा चुका है पास्ट में कि कहां पे है. Okay, like I said, mostly the topic is factual where you'll have to remember a lot of things, but short question सही ही होता है, ऐसा टॉपिक है ये. ठीक है, कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है, इजीली कर सकते हैं. So the 6 regional offices of the ministry are responsible to monitor the projects. Okay,
सो शिलोंग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ओके, एंड लखनऊ, भोपाल, बैंगलोर। बेंगलुरु, अर्स्टवाइल बैंगलोर, पहले इसे हम बैंगलोर बुलाते थे, नाउ इट इज बेंगलुरु, ओके। बट अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज की, ओके, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, तो सारे एक जैसे होते नहीं है, तो कोस्टल एरियाज के लिए ईआईए थोड़ा सा अलग होता है बेस्ड ऑन जोन, ठीक है, स्टेप्स यही फॉलो होंगे, बट बेस्ड ऑन जोन देयर इज लिटिल डिफरेंस, अलग से उसके लिए नियम बनाए हुए हैं, ओके। सो ईआईए फॉर कोस्टल जोन्स। और जैसा कि हमने देखा है कि 2006 द रेगुलेशंस वेर चेंज, नया नोटिफिकेशन आया था, ओके। बट ये कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है, इट इज स्टिल बेस्ड ऑन CRZ नोटिफिकेशन विच केम इन 1991, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं हम पहले ही, तो इस नोटिफिकेशन पे ही बेस करके यहां EIA किया जाता है, ओके। सो राइट डाउन द कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स, CZMPs, the coastal zone management plans, the coastal zone management plan are prepared by the coastal states or UTs, by the coastal states or UTs based on CRZ notification of 1991, based on CRZ notification of 1991, full stop. The CZMPs are prepared based on, the CZMPs are prepared based on, the CZMPs are prepared based on the identification of, based on the identification and categorization, identification and categorization of coastal areas for different activities, and then submitted to the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, okay. So पहले क्या है, CRZ1 है, CRZ2 है या 3 है, okay. So these are identified and then to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for approval, okay. तो अलग अलग जोन्स के पहले नियम लागू करके आप सारा प्रोसेस करेंगे। विच एक्टिविटी इज अलाउड, इसका सिंपल मतलब है कि सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी अलाउड है या है ही नहीं। CRZ1 में कुछ ना किया जाए ऐसा मानती है गवर्नमेंट, ओके। सो पहले चेक ये करेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप,
Okay. Now, for this thing, the government has a plan of single window clearance, क्योंकि ये ऑलरेडी टीडियस प्रोसेस है. ओके, अगर आप इतना सारा काम करना है एंड पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो बाद में, तो और प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, सो अब मान लीजिए कि हमने एक वर्ड वहां मैंने लिखा था इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, स्टेचुटरी कुछ करना है कि नहीं. ओके, सो इफ देयर इज समथिंग विच इज टू बी डन बेस्ड ऑन द लेजिस्लेशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप एक ही जगह पे एक साथ बोल सकते हैं कि ये प्रोविजंस एक साथ हमें चेक करवाने हैं. ओके, सो राइट डाउन, when a project requires both environmental clearance, when a project require both environment clearance, okay, और some statutory clearance भी चाहिए. Okay, when a project requires both environmental clearance as well as approval under some of the acts like Forest Act 1980 as well as acts like Forest Act 1980, proposals for both are required to be given simultaneously. Proposal for both are required to be given simultaneously by the concerned division of the ministry. Okay, तो आप क्लियर करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, दोनों एक साथ चलना चाहिए. पता चला आपका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वाला क्या है, हो गया, और फॉरेस्ट एक्ट वाले में वो फंस गया, तो पूरी एफर्ट क्या है, बर्बाद हो जाएगी. इसलिए साइमल्टेनियसली होगा. ओके, so the processing is done simultaneously. To the concerned divisions of the ministry. The processing is done simultaneously for the concerned divisions of the ministry for clearance or rejection. Okay, and if the project does not involve clearance of any other legislation, the case is only considered as environmental clearance. The case is only considered as environmental clearance. This is done by Parives. ओके, उसे हम इंडिया में परिवेश बुलाते हैं. दैट इज प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन. Proactive and responsive facilitation. Proactive and responsive facilitation. By interactive and virtual. Environmental single window hub.
ओके सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है. ओके अब इसका क्या काम है, सिंगल लेजिस्लेशन जितने भी क्लियरेंस चाहिए आप जाइए परिवेश पे. ओके आपको फॉरेस्ट एक्ट से दिक्कत है, वाटर एक्ट से दिक्कत है, इन्वायरमेंटल एक्ट तो इसको कवर करता है खुद ही. ठीक है तो वो तो सिंगल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में आ जाएगा. सो एनी ऑफ द एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ एक्ट मान लेते हैं. सो एनी ऑफ द एक्ट if conflict is there just we have to go there and it will manage single window clearance. Okay so write down it is an environmental single window. environment related जितने भी acts हैं उनके लिए एक ही है ये. it is an environmental single window hub for the environment. it is an environmental single window hub for the environment comma forest comma wildlife and CRZ clearances and CRZ clearances. Okay so this is an application based work. ठीक है सबको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा ये आ गया आपका वर्क ये. सो इवन द ऑफिशियल नोज आप भी ट्रैक कर सकते हो मेरा क्या स्टेटस चल रहा है, द प्रोजेक्ट दैट आई एम इन्वॉल्व इन. ओके द सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड environmental management system, the single window integrated environmental management system has been developed in pursuance of digital India, has been developed in pursuance of digital India, in pursuance of the digital India initiated by our prime minister, okay that ensures minimum government and maximum governance, minimum government and maximum governance. ओके रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, आपकी फाइल पड़ी रहेगी, वो बोलेंगे मैंने नहीं देखा, आप दिखाएंगे ये पड़ी हुई है, वो कहेंगे मुझे तो नहीं दिख रहा है. ओके सो इफ दे नो कि यू कैन फिजिकली बी प्रेजेंट देयर एंड सम मनी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू. ओके द करप्ट प्रैक्टिसेस वर सो मच प्रिवलेंट that government does not want much interaction until and unless it is necessary. okay नहीं तो क्या है, रेड टेपिज्म की वजह से पास्ट में इंडिया इसके लिए जाना ही जाता था, कोई अच्छी कंपनी नहीं आती थी, कोई प्रोजेक्ट इन्वेस्टर नहीं आता था. सो इफ द इन्वेस्टर विल गो टू ब्यूरोक्रेट तो नीचे वाले को चाहिए होगा 400, किसी को चाहिए होगा 4000, कोई 4 लाख मांगेगा. ओके सो दिस इज अ प्रॉब्लम, तो उसके लिए बनाया गया है. द की फीचर्स ऑफ परिवेश आर एज follows. The key features of परिवेश, आपको सिर्फ परिवेश पे भी क्वेश्चन आ सकता है. key features of परिवेश. First, it is a workflow based application. workflow based application. वर्कफ्लो मतलब जिसका जिसका जो काम है उस तक वो डायरेक्टली पहुंचाएगा. मतलब आप लोग 4 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसी क्लास से मान लेते हैं 4 ऑफ द पीपल गेट टू दैट प्रोजेक्ट ओनली. ठीक है और सबका काम बटा हुआ है तो वो अपने आप ही विल गेट दैट. ओके it has been rolled out for online submission. It has been rolled out for online submission. It has been rolled out for online submission. Monitoring and management of the project proposal
and management of the project proposal. Management of the project proposal. Okay. It involves both Ministry of Environment and Forest Climate Change, MOEFCC. It involves both MOEFCC and state level environmental impact assessment authorities. State level environmental impact authorities. Okay, sorry, assessment authorities. SEIAA. Next, it seeks to give various type of clearances, यानी फॉरेस्ट एक्ट ये वो अभी हमने देखा. It seeks to give various type of clearances from central, state and district level authorities. It seeks to give various type of clearances at central, state, from central, state and district authorities. District authorities. Next, this application and the system was developed by नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ज्यादातर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को एनआईसी ही बनाती है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ओके, सो ये सिंगल विंडो इसलिए बनाते हैं कि आपका काम क्या है. ओके, आप कोई भी हो, एनी स्टेक होल्डर, आप इन्वायरमेंट वाले हैं, कोई भी है, सो यू जस्ट हैव टू गो देयर, यू हैव टू पुट द डेटा दैट इज अबाउट योर रोल एंड रेस्ट ऑफ द पीपल विल डू द थिंग. गवर्नमेंट क्या है, अपना काम, अलग अलग डिपार्टमेंट जो जो इन्वॉल्व है सारा करके इंफॉर्मेशन फाइनली आप तक आएगी. ओके, नाउ 6 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. अभी मैंने कहा कि स्टेक होल्डर जाके वहां कर सकता है, तो वो भी फिक्स्ड होना चाहिए. अभी अंडमान में चल रहा और मेरे मन में आया मैं जाके कुछ भी करने लगूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है. सो 6 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स अंडर द EIA प्रोसेस. Six types of stakeholders under the EIA process. 6 types of stakeholders under the EIA process. First, those who propose the project. सबसे पहले those who propose the project. Okay. Second, the environmental consultant. The environmental consultant who prepares the EIA report. Who prepares EIA report. Who prepares the EIA report on behalf of the project proponent. On behalf of the project proponent. Okay. Then
स्टेट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। Pollution control boards, state and central pollution control boards. Okay, next is public has right to express their opinion. आप जाके वहां कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, आप वहां जाके लिख सकते हैं कि इन माय ओपिनियन इट डजंट सीम दैट द स्टडीज वेयर डन बेस्ड ऑन माय ओन स्टडी आई फाउंड दैट दिस, वो जाके वहां आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी। ओके, तो एजेंसी को भी खोजना है कि भाई मिनिस्ट्री मेरे इस पे कुछ कर रही है कि नहीं, तो उसी पे जाके देखेगी। ओके, एंड द रीजनल सेंटर्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इस पे भी क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर EIA। कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर EIA। कौन कौन लोग हैं? ओके, सो राइट डाउन द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिसिप्लिन, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिसिप्लिन, डैश कर दीजिए, फ्रॉम डिसिप्लिन। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स फ्रॉम इकोसिस्टम मैनेजमेंट। एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। थर्ड, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्लोरा एंड फाउना कंजर्वेशन मैनेजमेंट, इस सब चीज में उन्होंने काम किया हो। फ्लोरा एंड फाउना कंजर्वेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग पे काम किया हो, लैंड यूज प्लानिंग। सोशल साइंसेज और रिहेबिलिटेशन, सेटलमेंट से एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह गए, उनके लिए कुछ काम किया हो। सोशल साइंसेज एंड रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। ओके, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी में ही कहीं काम किए हो, प्रोजेक्ट अप्रेजल। या फिर इकोलॉजी, उसका एक्सपर्टाइज ही इकोलॉजी हो। ओके, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट, किसी भी डिसिप्लिन का बहुत एक्सपर्ट हो कोई, सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन NGO, और persons concerned with environment, environmental issues,
एनजीओ जैसा ही, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, ठीक है, मुझे इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जाके बोलूं कि नहीं मैं हूं, ऐसा नहीं. दोज हु आर वर्किंग पर्सन कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल इश्यूज. ओके. द चेयरमैन मस्ट बी an outstanding expert. The chairman must be an outstanding and experienced ecologist. The chairman must be an outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional. Ecologist or environmentalist or technical professional with wide experience, okay. Next, the representative of impact assessment agency. The representative of the impact assessment agency will act as member secretary. अंडरलाइन कर लीजिए इसको, बाकी चीजें गलती नहीं होगी, यहां गलती हो सकती है. Will act as member secretary. Will act as member secretary. Next, the chairman and the members. The chairman and the members will serve in their individual capacities. The chairman and the members will serve in their individual capacities except those specifically okay, except those specifically nominated as representatives. Except those which are specifically nominated as representatives. ठीक है. Next, the membership of a committee shall not exceed 15 members. किसी भी कमिटी में 15 से ज्यादा लोग नहीं होंगे. The membership of the committees shall not exceed 15 members. Okay. Now, there are little more discussion which is left in this topic that we'll be doing in our next lecture. ठीक है. और इसमें क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, बट अगर हम देखते हैं 2006 के नोटिफिकेशन को, सो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल उसे ही कंपलसरी माना गया है. ठीक है. तो ऑल द स्टेजेस दैट वी हैव सीन, उसमें सिर्फ 4 स्टेज कंपलसरी हैं. सो विल हैव दैट डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थोड़ा और समय हमें इसमें लगने वाला है. और 2000 नोटिफिकेशन में ऐसा करके क्या अलग करना चाहा था, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. एंड वी हैव सीन दिस एट लेंथ, मोर देन अ लेक्चर. द रीजन इज that we have seen in past that this has brought questions not only in prelims but in mains also. And many a times if some of you are having a background in environment, college में पढ़ा है तो इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे, या ज्योग्राफी भी है तो फिर भी पूछ लेंगे, पता चला. ओके. सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स. Try to remember these. You'll require revision for these kind of topics where there is a lot of factual matter. Okay. Because there are so many common things that have the potential of confusing you. क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये तो होता होगा, लेकिन पता चला एक चीज उसमें से नहीं है नॉर्मल में. So regular readings will help you do this thing. Regular readings means you have to come back to these kind of topics again and again, focus on revisions and you'll be able to manage. Okay. So beyond this we'll be looking in our next lecture. Okay. So everyone stay healthy, stay blessed. Thank you. Thank you very much.